Hello students, today we will discuss about the next topic related to electrodynamics. Okay, and the topic is that electrodynamics electrodynamics after Maxwell, okay, or Maxwell equations, okay, Maxwell equations. So today we will discuss only on differential form of these equations. The first equation, which is known as, and you know very well in previous lecture, Gauss's law, in electrostatics. Okay, electrostatics means charge is in rest. The differential form of Gauss's law is divergence of E, okay, vector E, which is electrostatic electric field, is equal to rho divided by epsilon naught, where rho is the volume charge density, okay, and epsilon is the permittivity of free space. And second is Gauss's law in magnetostatics, okay, magnetostatics. That means it is true only for steady current, and which is given by divergence of, sorry, always true, divergence of B is equal to 0, okay. And third is Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic इंडक्शन. क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था कर्ल ऑफ ई, सॉरी ऐसे लिख दीजिए आप, कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, ओके, माइनस डेल बी बाय डेल टी. एंड द लास्ट और स्पेशल differential equation is Maxwell modified, Maxwell Ampere's law or Ampere's modified law, which is modified by Maxwell. Curl of B magnetic field is equal to mu naught J vector plus mu naught epsilon naught del vector E by del T, ओके. अब आप देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई
is equal to rho by epsilon naught. That means charge produces electric field. That means charge is a source of electric field. And according to second equation, single pole does not exist in magnetostatic. That means always north and south pole exist. Third, according to this, the time dependent magnetic field or time varying magnetic field produces electric field. And according to equation 4, time varying electric field also produces magnetic field, and current also producing magnetic field. So see the last two equations here. That means time varying magnetic field produces electric field, and time varying electric field produces magnetic field. That means if we have a such type of source due to which electric field produces such that which is varying with respect to time, then the producing magnetic field due to time varying electric field which also be vary with respect to time, and then time varying magnetic field also produces electric field. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो भी आपका टाइम वैरिंग होगा, और टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो भी टाइम वैरिंग होगा, अगेन फिर वो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है, टाइम वैरिंग फॉर्म में है, तो मैं विदाउट एनी मीडियम आपके क्या करेंगे, वन प्लेस टू दूसरे सेकंड प्लेस आपका क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। इसके बेस पर ही मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट रखा, ठीक है। और ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने इस टर्म में, और आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो आपका गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपका थर्ड लॉ में इंक्लूडेड है, ओके। बट जो आपका सेकंड लॉ था वो आपका फोर्थ लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता था ऑलवेज, बट अब इस कंडीशन के बाद ये आपकी फोर्थ इक्वेशन में सेकंड लॉ भी आपका इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टू इक्वेशंस के बेस पर हम पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए अब आगे जो भी इक्वेशंस हम स्टडी करेंगे वो हेल्प किसकी हेल्प से करेंगे, लास्ट टू इक्वेशंस की हेल्प से, जिन्हें बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, लास्ट टू इक्वेशंस को, ओके। तो इन जनरली हम इन टू इक्वेशंस को अब यूज नहीं करेंगे। जब भी मैक्सवेल इक्वेशंस आपको कही जाएगी इन डिटेल में तो आप इन्हीं को डिस्कस करेंगे जब किसी डेरिवेशन में यूज करेंगे। जैसे कि आप आगे देखोगे कि रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, देन वी सो बोथ two equations in the form of scalar and vector potentials. Now after that we discuss different forms of these equations in different mediums, okay. Now for any medium, okay, so for any medium we take फ्लोइंग टाइप ऑफ दीज इक्वेशंस। देखिए कौन सी लेंगे, ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होगी डाइवर्जेंस ऑफ दी वेक्टर, डाइवर्जेंस, सॉरी फॉर सम टाइम, कोई नहीं, उसे देख चलिए, सॉरी फॉर दिस। नाउ you know very well displacement vector we define for any medium because this term is very easy to calculate
another properties of related of these things in any medium, and D is defined as epsilon E, okay, in any medium, or epsilon naught vector E plus vector P, where P is polarization, okay, dielectric polarization. Now for this we can write these equations carefully. Divergence of D is equal to rho free. देखिए यहाँ पर जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, बट यहाँ पर जो आपने चार्ज लिया गया है ये आपका कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज, ओके। तो केयरफुली यहाँ पर आपको बाउंड चार्ज और जो आपका क्या कह सकते हैं कि हम आपको फ्री चार्ज दोनों को कैलकुलेट करना होगा, बट यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ओनली ऑन किसे स्टडी करना है, फ्री चार्ज को, ओके। इसलिए काफी इजी हो जाता है, आप इसे रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पर आप चलिए, आपने मैग्नेटिक फील्ड में आपने अनदर थिंग पढ़ी हुई जो मीडियम्स में स्टडी करते हैं, वो आपका क्या है, B इक्वल्स टू म्यू एच, ओके, म्यू एच, ये आपकी क्या है, परमिबिलिटी, ठीक है, और वो आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्लियर है ना। देखिए ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये आपका जनरली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्री स्पेस में। नाउ अब आप देखिए क्या होगा, ये फॉर्म आपकी कन्वर्ट होके आ जाती है डाइवर्जेंस ऑफ एच। आप डाइवर्जेंस ऑफ एच लिख लीजिए या डाइवर्जेंस ऑफ बी लिख लीजिए, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करते हैं इस इक्वेशंस को। एंड दैट इक्वेशन ये भी आपकी हम सेम ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बट जो लास्ट इक्वेशन है आप इसे चेंज करके देखते हैं क्या आपको इक्वेशन मिलती है। तो देखिए आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ई की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए और बी की जगह बी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, नोट कर लीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एच इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगी इन मीडियम्स की हेल्प से, तो कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच होगा ना, तो एच की जगह आपका क्या आएगा, म्यू एच, क्या आएगा, देखिए नोट कर लीजिए, म्यू एच। तो यहाँ पर जब आप एच लिखोगे तो म्यू आपका आ जाएगा बाहर और वो डिवाइड में चले जाएगा आपका, सॉरी ई की जगह लिख देना, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वेक्टर डी, ओके। तो ई की जगह आपको क्या रखना होगा, डी बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका उधर चले जाएगा, तो ये आपका मिलेगा 1/एप्सिलॉन हो गया ना, और बी की जगह जब आप म्यू एच रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू बाई एप्सिलॉन। देखिए ये जो भी डाटा आप लिख रहे हैं ये तब आपके इस टाइम डेरिवेटिव से बाहर निकलेंगे जब ये टाइम इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर है। तो ये फॉर्म जनरली स्टडी नहीं की जाती, इसी फॉर्म को रिमाइंड किया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगा इधर से, तो ये आपका होगा क्या चीज वाला, देखिए जरा, यदि हम बात करते हैं ये यहाँ पर म्यू नोट लिखा गया क्योंकि हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस की। यदि आपका फ्री स्पेस ना हो तो यहाँ पर भी आप जरा देख लीजिए, हम यहाँ पर भी फ्री स्पेस के लिए ही काम कर लेते हैं, कोई बात जनरली। तो देखिए क्या होगा, तो यदि हम फ्री स्पेस के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आप फ्री स्पेस के लिए ही बात कर लीजिए, म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, तो क्या होगा, बी की जगह जब आप पुट करोगे फ्री स्पेस में तो म्यू नोट एच होगा आपका, तो म्यू नोट आपका बाहर निकल जाएगा, कर्ल ऑफ बी, सॉरी एच, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे, म्यू नोट यहाँ पर आपका जे हो गया प्लस यहाँ पर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, जरा देखिए एप्सिलॉन नोट को इसके अंदर ले जाए आप तो एप्सिलॉन नोट ई हो जाएगा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, वेक्टर डी। तो यहाँ पर देख लीजिए वेक्टर डी बाय डेल्टा टी। जरा यहाँ पर आप देख लीजिए एक चीज और, जब आप फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में पोलराइजेशन नहीं होता, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0, ओके। तो यहाँ से देखिए म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर्ल एच इक्वल्स टू वेक्टर जे प्लस वेक्टर डेल डी अपॉन डेल टी, ये आपका हो गया इस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका करंट डेंसिटी हुई, कौन सी, कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये आपका कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ओके।
तो हम जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको इजीली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और कंपटीशन लेवल में ये डिस्प्लेसमेंट करंट काफ़ी पूछी जाती है क्योंकि ये जनरली बच्चों को पता नहीं होता। तो अब आगे के लिए हम चलते हैं डिफरेंट मीडियम्स में आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस क्या क्या होगी। तो केयरफुली रिमेंबर दीज टर्म्स। ओके, तो नाउ नोट कर लीजिएगा क्या है इक्वेशंस। चलिए तो चलते हैं। तो जनरली हम इसकी सेकंड फॉर्म स्टडी करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस क्या होगा आपका, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, पहली इक्वेशन लिखवा दीजिए आप, डाइवर्जेंस ऑफ डी आपको पीछे बताया गया था इक्वल्स टू क्या आया था आपका। जब आप फ्री स्पेस की बात करोगे तो कुछ क्वांटिटीज है जिन्हें आपको कंसीडर करना होगा। फ्री स्पेस में आप देखिए फ्री स्पेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो यदि आप फ्री स्पेस की बात करोगे तो वहां पर आपका चार्ज कितना होगा, 0। तो वो भी किसकी बात कर रहे हैं, फ्री चार्ज की, कितना होगा, 0। तो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, 0। और दूसरी चीज आप देखिए डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका ऑलवेज 0 है, या आप एच भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था जनरली ऐसे ही यूज करेंगे क्योंकि में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है। थर्ड इक्वेशन देखिए आप, डेल कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी। देखिए इनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए टर्म्स आपकी मॉडिफाई नहीं होगी। तो इसकी फॉर्म यही याद कर लीजिए। एंड फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या थी, कर्ल ऑफ, बोलिए क्या था, बी, क्लियर है ना, इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, है ना, करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी। आपको पता है कि फ्री स्पेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। इसके बाद आगे चलते हैं और करंट डेंसिटी कौन सी की बात करेंगे हम, फ्री करंट डेंसिटी की। यदि बी की फॉर्म में है तो आपकी टोटल करंट डेंसिटी होगी, अदरवाइज फ्री करंट डेंसिटी जो कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है आपकी जनरली कितना है, 0। तो वो आपका 0 हो गया। प्लस आप चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। वेक्टर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपका डेल ई अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या था, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। तो आप इसे थोड़ा सा रिवाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके डेल क्रॉस एच, ओके, इक्वल्स टू, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वेक्टर डेल टी अपॉन डेल टी। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। जनरली आपको ये रिमाइंड करना है, ठीक है, तो इसे रिमेंबर कर लीजिए। तो आपको ये हो जाएगा, नाउ मैक्सवेल इक्वेशंस इन ए लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया। मैक्सवेल इक्वेशन इन लीनियर, क्लियर है, लीनियर मतलब कि वन पावर डिपेंडेंसी होगी, लीनियर आइसोट्रोपिक, सभी डायरेक्शन में मीडियम क्या होगा, सेम होगा, मीडिया, ठीक है। ये मीडिया क्या दिए, मीडियम क्या दीजिए। तो अब मीडियम में आ गए, तो उस मीडियम में आपका करंट डेंसिटी ये जो आपका है 0 नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। मीडियम की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, ठीक है। तो जब कंडक्टिंग मीडियम नहीं है तो चलिए आप आगे देखिए क्या होगा। तो हम इक्वेशंस लिख देते हैं यहाँ पर। तो सपोज कर लीजिए कि लीनियर आइसोट्रोपिक जो मीडिया है वो आपका क्या क्या करे, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 पावर पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे मीडिया को बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया। और दूसरा क्या हो गया आपका H, तो बी का आपका क्या होगा, 1 पावर डिपेंडेंट होगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे B इक्वल्स टू म्यू H। तो वह भी 1 पावर डिपेंडेंसी है और सभी डायरेक्शंस में सेम इफेक्ट है, तो इसे बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया। तो इस मीडियम में बात करते हैं क्या होगा आपकी इक्वेशंस, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस बिकम्स
क्या होगी आपकी डाइवर्जेंस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, बोलिए। देखिए जब मीडियम की बात करते हैं तो टोटल बाउंड चार्जेस को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की रो है। देखिए इन्हीं को रिमूव करने के लिए, बाउंड चार्ज बाउंड करंट को रिमूव करने के लिए हम डी और एच का कंसेप्ट लेकर चलते। इसमें कोई करंट है नहीं तो ना कोई चार्ज है, इसलिए आप इस इक्वेशन को सेम एज रख सकते हैं। सेकंड आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 0। आप चाहे तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आपका बी इज 0 है ना, और आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो एफ, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो अपनी उसी प्रॉब्लम को जैसे आपने पीछे लिखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होगी, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी। इसे रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज करने की क्योंकि चार्ज का और करंट का कोई इफेक्ट नहीं है। एंड फोर्थ इक्वेशन ऑफ कर्ल ऑफ बी, क्योंकि इसमें चार्जेस और करंट है इसलिए हम इसे क्या में कन्वर्ट कर देंगे, एच में, इक्वल्स टू यहाँ पर आपका क्या होगा, जे, वो भी कौन सा, फ्री करंट डेंसिटी या कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डेल टी अपॉन del t. Okay, this is the fourth equation and these are four equation in any linear isotropic media. Okay, so these are the basic informations related to electrodynamics before after Maxwell. After that we will discuss about Poynting theorem and the differential equation, Maxwell differential equations in terms of vector potential and scalar potential. Okay, thank you for this. Please subscribe my YouTube channel, like and share more and more. Okay, thank you.